Good morning, ladies and gentlemen. Guest of honor for today's session, Mr. Deepak Sharma, CHRO and founder of Life Skills Gurukul. Director RDIS, Professor Dr. Raman Garg. Dean Placement, Ms. Namita Garg. Respected faculty members and my dear friends. I, Lovely Arya, welcome you all to the session on Holistic Secret of Life Skills for Beyond the Success and Growth in Life at RDIS. Before we commence this session, I would like to present a brief about RDIS. For you, sir. Rukmani Devi Institute of Advanced Studies is run under the aegis of Seth Pokarmal Educational Society and is accredited with A+ grade by NAC in our second cycle this year. RDIS is a category A+ institute judged by SFRC, that is State Fee Regulatory Committee. The institute has been awarded highest category A grading by Joint Assessment Committee of GGSIPU and Department of Higher Education. The institute has a cohesive team of experienced academicians who facilitate the learning processes by augmenting the course structure through active academic industry interface. Ladies and gentlemen, as we all know that human beings deal with various challenges through the span of their lives. Some are emotionally draining obstacles, while others may be mentally torturing demands. In a dynamic environment such as ours, one is supposed to act in a reasonable manner during the times of crisis. It appears that all of us require some skills which will help us to tackle the everyday problems at hand and will push us to act and respond in a productive, responsible, and suitable manner. To take us on a bright side in our personal lives and career ahead, we have with us Mr. Deepak Sharma. Ladies and gentlemen, let me take the privilege to introduce our honorable guest to you. Sir has 27 years of core HR experience in various industries. Sir is the author of the world's most visited blog, Success Industry, and also an international motivational speaker. Sir is the founder of Life Skills Gurukul, indeed a true charioteer for future leaders. Sir has also been designated as a guest lecturer and keynote speaker in many international institutions, which includes Japan Institute of Technology, Manila Business School in Philippines, Indonesia Institute of Technology, Keystone Business Academy in Paris, Singapore Management Institute, Asia Business Institute, and 23 others in 16 nations. It feels great to mention Sir's awards and recognitions. He's been ranked 19th in top 30 HR most influential leaders of the world and rated in top 10 HR influencers in Asia. Further, also awarded by SSCS USA and WAC Geneva, to name a few. Sir, we feel honored with your presence and are looking forward for your secrets of life skills. I now would like to request Director Sir to please facilitate our guest of honor. Please welcome them with a huge round of applause. Ladies and gentlemen, I now would request Sir to please begin with his session.
My voice is clear? So first, namaste to all. As I am not a Britisher and not American, I am pure Indian, and we'll do some experiment today. Let's feel the power of mind. So we just need participation of each and every person, right? And in end of session, we can see that how mind is working. The first thing, we stop communication, right? As you know, this is myth that in a proper way, if we do communication, then only mind can work. So first, you just stop the proper way, leave the language, right? And whenever you speak, don't think what is verb, what is the, you can say, the structure of sentence. Just leave it, just speak in any language except Chinese, that I don't know. चलिए ठीक है. Then now start time traveling. Year 1990. आप में से तो कोई भी 1990 का मॉडल नहीं है, सब बाद के हैं ना. चलिए, 1990 में मैंने अपना कैरियर शुरू किया था. 66 बॉर्न, 1990 में कैरियर शुरू किया. 23.5 ईयर्स छोड़ दिए, 24 राउंड कर लेते हैं, 24 साल के थे. कंपनी थी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन. कितने लोग जानते हैं कॉर्निंग के बारे में? हाथ उठा. गूगल मत करना भैया, बता ऐसे. कॉर्निंग जानते हो? चलो. और देखो, शर्म आनी चाहिए. वर्ल्ड की 10 टॉप कंपनियों में से तुम एक का नाम नहीं जानते. आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए शर्म? जोर से बोलो, आनी चाहिए. हाँ. कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन के दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उसका ग्राहक ना हो. पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको कोई ज्ञान पिलाने नहीं आया, ठीक? हम बात करेंगे साधारण अपनी जिंदगी की, उस जीवन की जिसे हम जीते हैं, रोज जीते हैं और अपने हिसाब से जीते हैं. उसमें मैं आपसे कोई किताब की नॉलेज शेयर नहीं करूंगा, किसी भी बुक की. वो शेयर करूंगा जो मैंने अपने जीवन में भोगा है. ठीक है. वो विचार जो मैं नहीं कह पाता था जब मैं आपकी एज था और थोड़ा सा और आगे निकल रहा था. तो ये बात है 1990 की. कंपनी थी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेशन. वर्ल्ड में हर आदमी कॉर्निंग का कस्टमर है. अगर आपके पास मोबाइल है तो आप कॉर्निंग के कस्टमर हैं, क्योंकि उसके अंदर कॉर्निंग ग्लास ही यूज होता है, ठीक है? और वर्ल्ड में जो भी ग्लास बनता है वो आप कह लीजिए कि रॉ मटेरियल की जो टेक्नोलॉजी है वो कॉर्निंग ही देता है. तो एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपनी रही है अपने टाइम में, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है. जब मैं उसमें काम करता था तो उस टाइम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी थी. माइक्रोसॉफ्ट तो थी नहीं उस टाइम, ना एप्पल थी. तो फर्स्ट कंपनी थी उस टाइम में रॉकफेलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सेकंड जनरल मोटर्स हुआ करती थी, थर्ड कॉर्निंग हुआ करती थी. तो 1990 की बात है, 1990. आई स्टार्टेड माई कैरियर विद कॉर्निंग. द प्लेस वॉज डेट्रॉयट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. आई ज्वाइंड एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी. अब इतनी बड़ी कंपनी, मैनेजमेंट ट्रेनी. काम क्या था? शॉप फ्लोर पे
हाथ में रजिस्टर लेकर अटेंडेंस लगाने का। और उस कंपनी में जब मैं वहां पे ज्वाइन किया तो 3783 लोग थे, 3783, 3783। एक शिफ्ट मेरे पास थी, डिवाइडेड बाई 3 कर लो, वो अटेंडेंस इतने लोगों की मुझे अटेंडेंस लगानी होती थी हाथ में रजिस्टर लेकर। और मैं अकेला काला था, मतलब अकेला इंडियन था। हालांकि वैसे मैं उनसे ज्यादा गोरा था अंग्रेजों से, बट वो इस बात को मानते नहीं थे, ठीक है, वो इस बात को मानते नहीं थे, वो फिर भी काला ही समझते थे। तो वो उनकी गलती है, वो मेरे कोई लेना देना नहीं इस बात से। तो हुआ क्या कि जब हम गए तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको क्या काम दिया जाए, तो बोले अटेंडेंस लगा लो। अटेंडेंस लगाने का काम दे दिया, रजिस्टर हाथ में है, शॉप फ्लोर पे जाइए, ऐसे कार्ड देखिए, नाम देखिए, शक्ल देखिए, एक जैसी है तो अटेंडेंस लगा दीजिए। अब 1990 में क्या है, बायोमेट्रिक और ये सब सिस्टम नहीं था, आदमी की शक्ल ही उसका बस थी और आपको अटेंडेंस लगानी है, सब काम मैनुअल था। जो कंप्यूटर था वो शायद विंडो 3 और कुछ ऐसा रहा होगा डॉस में, मैंने भी देखा भी नहीं था, पर वो अकाउंटेंट फिनांस वालों के कमरे में एक रखा रहता था, वो क्या करते थे उस पर मुझे नहीं मालूम। अभी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जिसके पास कंप्यूटर होता है तो क्या करता है, गॉड नोज, ठीक है, मतलब दूसरों को लगता है शायद कुछ काम की चीज कर रहा होगा, स्पेशली माता पिता को तो जरूर लगता कि बेटा बच्चा जो हमारा जरूर कुछ ना कुछ काम, भले वो फेसबुक खोल के बैठा। तो वो अटेंडेंस लगाते लगाते मुझको 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद मुझको विचार आया कि भाई यार इसी काम के लिए आया था क्या मैं यहाँ पे, इसके लिए तो MBA करने की जरूरत नहीं थी। अटेंडेंस लगानी है, शक्ल देखना, ए और पी लिखना, भाई नहीं आया लिस्ट में तो ए लगा दो, अगर आया हुआ तो पी लगा दो। तो इस काम के लिए MBA करने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो मैं अपने बॉस के पास गया, मिस्टर क्रॉन एलन नाम था उनका, ऑस्ट्रेलियन पर्सन थे, क्रॉस कल्चर कंपनी है तो बहुत सारे कंट्रीज के लोग साथ में काम करते हैं। वो उस अकॉर्डिंग में उस समय HR भी नहीं था, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते थे। मेरा डेजिग्नेशन था एग्जीक्यूटिव P&A, वो थे सीनियर मैनेजर। मेरे उनके बीच में 4 डेजिग्नेशन और थे। मैं उनके पास गया, मैं सर ये $1,700 सैलरी मिलती है, इसमें भला नहीं होता। अब इतना इसमें हंसने वाली बात नहीं है, 1700 कुछ ज़्यादा नहीं थे उस समय, शायद 27-28 रुपये रेट होगा डॉलर का, 30 होगा, एग्जैक्ट तो मेरे याद नहीं है। उसमें से आधी से ज़्यादा तो शिवाज रीगल और ब्लैक लेवल खा जाती थी। तो अब हाथ में बच के कितने आते थे, नहीं ये फैक्ट है। देखिए जब मैं पढ़ता था तब तो ये सब काम नहीं करता था, तब तो खाली क्या था कि खाली कॉलेज जाना, घर आके पढ़ना, और जो टाइम बच गया उसमें जिम जाना। तो दूसरी चीज कोई दिमाग में थी नहीं, क्योंकि लगता था शायद माँ बाप के पैसे को मुझे इस तरीके से ना मतलब खर्च नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने, जब मैं कमाना शुरू करूँगा तब करूँगा, इसलिए बचा के साइड में रख दी। तो ये एक भावना थी दिल में। और जब आप सब छोड़ के घर से बहुत दूर होते हैं, जहाँ कोई आपको देख भी नहीं रहा होता, तो फिर सारी चीज़ें अंदर से ना एकदम बाहर निकल के आती हैं। तो एक चीज़ नहीं करी, जैसा मैं पहले हमेशा 100% वेजिटेरियन रहा, तो नॉन वेज खाने का मेरा कभी मन नहीं करा, वो अंदर से वॉइस भी नहीं आई, मतलब वो थॉट ही नहीं आया कि मुझे ये भी करके देखना चाहिए। बट हाँ, वो होता क्या था, जैसे ब्लैक लेवल की वो देखी ना बॉटल, तो वो हम उस टाइम तक तो पिक्चर में देखते थे, प्रेम चोपड़ा पी रहा है, रंजीत पी रहा है। हाँ, जितने विलेन होते थे वो हीरो तो पीता नहीं है। तो उनको पहली बार जब मैं स्टोर में गया तो मैंने छू के देखा उसको ऐसे, उससे भाई यहाँ इंडिया में तो कहाँ देखते बता।
तो उसको छू के देखा, मुझे लगा यार ये ना मतलब एकदम अमृत जैसी कोई चीज़ है। तो $8 की थी, तो खरीद के ले आए। खैर मतलब एक छोड़िए, तो आधी आधी सैलरी तो ऐसे चली जाती थी, आधी चली जाती थी टैक्सी में, क्योंकि इंडियन आदमी थे तो थोड़ा सा शो ऑफ भी करना पड़ता है, दिखाना कि भाई हम टैक्सी जाते हैं, जबकि टैक्सी जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, तो कुछ कुल मिला के पैसे नहीं बचते थे। तो उस चीज़ ने एक अंदर से पैदा किया कि बॉस से पूछें। तो बॉस के पास गए, उससे बोले जी भाई इतनी तनख्वाह में तो काम होता नहीं। मैं सर आपको तो अब क्या था, मैं HR का था तो मुझे मालूम था किसकी कितनी सैलरी है, क्योंकि अटेंडेंस तो मेरे पास ही थी, तो हाफ पे रोल तो मेरे पास ही था प्रोसेस करने का। मैं सर आपकी $8,000 है, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं $8,000 कैसे कमाऊं। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले मेहनत से काम करो और जो टारगेट दिया जाए उसे टाइम में पूरा करो। मैंने आप मुझे काम बता दीजिए, द लिस्ट ऑफ वर्क। बोले नहीं ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। भाई फिर आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। बोला अभी तो आप ये काम करो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो मैं भी सोच में रहा कि पता नहीं देखो क्या काम बताते हैं जिससे मैं भी अच्छे पैसे कमाऊंगा। 3 महीने और निकल गए, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। तो पहला तो एक चीज आप समझ लीजिए, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये काम करने से इतनी सैलरी मिलेगी और ये आपका ये प्रमोशन हो जाएगा या ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा कोई लिस्ट ऑफ वर्क नहीं होता। जो मैंने सीखा वो काम के बारे में, काम सिर्फ 2 तरह का होता है। एक वो होता है जो आपकी टेबल पे जब आप सुबह आकर बैठते हैं तो आपको मालूम होता है क्या करना है, जो प्री असाइंड है, टेबल पे एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से आपके चला जाता है। दूसरा काम होता है जो आपका बॉस आपको बुला के बोलता है कि भाई ये काम कर लीजिए। 2 ही तरह के काम होते हैं, तीसरा कोई काम नहीं होता। तीसरा जो काम होता है वो आउट ऑफ बॉक्स होता है, आप खुद ही कुछ ढूंढ ढांड के कुछ कर लें तो अलग बात है, वो दिमाग में कभी आता भी नहीं, पता भी नहीं होता क्या करना होता। मैं 3 महीने बाद फिर उनके पास गया, फिर उनसे पूछा, तो बोले ठीक है कल हम बात करेंगे। अगले दिन मुझे बुलाया गया और एक लेटर थमाया गया, वो था मेरा ट्रांसफर लेटर। और ट्रांसफर लेटर कहाँ से? डेट्रॉइट से फुकेट इन थाईलैंड। उन्होंने मुझे कॉन्टिनेंट में रखना भी पसंद नहीं किया, वो कहा इसको भगाओ यहाँ से, ऐसी जरूरत ही नहीं है। अब मैं जब बड़ा चक्कर, फिर मन में खुशी भी थी, मैं चलो थाईलैंड जाके कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई लॉस एंजलिस से कम थोड़ी है। तो अब हम थाईलैंड आ गए, पर दुख था कि यार मतलब इस तरीके से नहीं ट्रांसफर करना चाहिए था। जब थाईलैंड आए तो वहाँ बॉस से जब जाके मिले, लेटर की कॉपी दी, तो बोले आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। वो बंदा जैपनीज था। बोला आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, हमारी डेट्रॉइट बात हुई थी, यू आर नॉट ए गुड पर्सन, यू आर ट्रबल टू योर बॉस। भाई पता नहीं मैंने क्या ट्रबल अपने बॉस के लिए बन गया, तो बड़ी अजीब सी बात कर रहा है। खैर उससे कुछ बात नहीं किया, तो उसने मेरे को बोला कि द वर्क इज सेम बट वी आर जस्ट ऑब्लाइजिंग यू, वी डोंट हैव एनी वैकेंसी। हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मैं साहब मेरे पास तो लेटर है कॉर्पोरेट HR का। बोले कॉर्पोरेट HR का इसीलिए आपको बोला, नहीं तो हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, आप बेटर है इंडिया वापस चले जाओ। मैंने यार ऐसे तो नहीं जाऊँ। अब कॉर्पोरेट HR की ने अगर लेटर दिया तो कुछ तो करेंगे। खैर देन वो लोग आपस में बात करके बोले ठीक है आप अटेंडेंस लगाओ शॉप फ्लोर पे। 3 महीने और अटेंडेंस लगाई। साथ में उन्होंने बोला कि आपकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो आपका प्रोफेशन है वो
जीरो से शुरू होगा, मतलब जो मैं वहाँ पीछे काम करके आया था उसको उन्होंने जीरो कर दिया, क्योंकि आपका कॉन्टिनेंट मैं कंपनी तो एक ही है। बोले नहीं वो अलग प्रॉफिट सेंटर है, ये अलग प्रॉफिट सेंटर है, मतलब 10 कॉर्पोरेट कहानियां सुना दी गई। ठीक है, दोबारा से नौकरी शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। थाईलैंड का लालच था। हाँ अच्छा शहर है, अगर आप जाएं तो इससे ब्यूटीफुल सिटी। तो फुकेट इज वेरी वेरी गुड सिटी। काम शुरू किया, वही अटेंडेंस। 1.5-2 महीने बाद फिर हमको लगा कि भाई इसमें तो खर्चा नहीं चलेगा, मैं चलो इससे भी एक बार पूछ के देख लेते हैं। तो मैं उसको गया, मैं उससे बड़े हम्बली पोलाइटली, अब या तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं लगती कि हम्बल पोलाइटनेस अंदर से आती होगी, बट जितना मैं देखो कर सकता था मैंने ऐसे करके, मैं सर हमारे यहाँ इंक्रीमेंट का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ प्रमोशन का क्या सिस्टम है, मुझे कैसे मिलेगा, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिले, मैं मतलब और कितने टाइम में कितना प्रमोशन हो सकता है, ये टाइम बाउंड है या मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर परफॉर्मेंस के ऊपर है तो आप मुझे काम की लिस्ट दे दीजिए, भाई आप ये 50 काम कर लेंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, आप ये 20 काम कर लेंगे तो आप डिप्टी मैनेजर हो जाएंगे। तो बोला इसी वजह से तो आपको डेट्रॉइट से भगाया गया था, आप आके यहीं फालतू बात कर रहे हैं, तो आपको वापस इंडिया जाना है क्या? तो मैं सोचा भाई अभी तो कुछ बात करना बेकार है, तो नौकरी चुपचाप करते रहो। शाम को दिमाग में लगा कि नहीं यार इंडिया वापस चलते हैं, बोले अटेंडेंस लगाने के लिए तो नहीं बैठेगा, फिर यहाँ तो कुछ भविष्य क्लियर ही नहीं है, एमएनसी तो इतना बड़ा वो है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मिस ओरियन जो थी, शी वाज प्रेसिडेंट ग्लोबल ऑपरेशन फॉर कॉर्निंग। वो टॉप बॉस है, मतलब आफ्टर चेयरमैन शी इज अ टॉप बॉस, लाइक ए डेमी गॉड। तो मैं ऐसे पूछा, मैंने वो कभी आती हैं? बोले नहीं लास्ट 5-6 साल से तो नहीं आया है। चलो, तो मैं अपने बॉस को पूछा जाके, मैंने सर अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो शुड आई आस्क टू मिस ओरियन, मैं उनको फैक्स करके पूछ लूँ। मैं तो नया था ना इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जो भी दरवाज़ा मिल जाए उसमें घुस जाओ, लेकिन एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है। तो नया इंडक्ट को तो नहीं मालूम ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कैसे हैं क्या है, वो मालूम भी हो तो उसका वेट नहीं मालूम। तो बाद में समझ में आया कि भाई उनके सामने तो सीईओ खड़ा नहीं हो सकता, 126 नेशंस में कंपनी का ऑपरेशन है, ठीक है, और करीब 48 सीईओ थे उनके पास। तो 48 सीईओ तो मतलब लाइन लगा खड़े रहते हैं बेचारे, वो बैठ भी नहीं पाते, बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं पाते, और मैं ऐसी बात पूछ लिया। तो अगले दिन मुझे बुलाया, बोले आप एक काम करो, आप एचआर का काम छोड़ो, आप सिक्योरिटी गेट पे बैठो, और आप सिक्योर जो ट्रक बाहर आते जाते हैं उनका नंबर लिखो, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखिए। तो मेरा एचआर खत्म हो गया। फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन सा लगा मुझे यार कि ये, फिर मैंने नहीं यार अंदर से मतलब मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, काम तो भाई तुम्हारे साथ ही करूंगा। ये वही कहानी चल रही है जो अभी बिग बॉस में चल रही है ना, उसकी विकास की और शिल्पा की। तो मैं लगा मैं छोड़ूंगा, रहूंगा यहीं। ठीक है, तो अब ईश्वर जब मेहरबान होता तो कुछ भी हो सकता। तो एक हफ्ते बाद मालूम पड़ा मैडम आ रही है, तो मैं सिक्योरिटी वाले को बुलाया, मैंने सुन जब तक मैं नहीं कहूंगा दरवाजा नहीं खुलेगा। बोला राइट सर। अब एक्स आर्मी का था, आर्मी वाले पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं, उसको भी था कि प्रेसिडेंट की गाड़ी रोकेगा तो नौकरी इसकी जाएगी। तो अच्छा विदा हो जाए। वो तो लोकल था ही था, थाईलैंड का बंदा था, तो वो भी चाह रहा था कि उसने कह दिया राइट सर। तो वो शुभ दिन आया जब प्रेसिडेंट की गाड़ी आई, दरवाजा नहीं खुला, उनका ड्राइवर बहुत जोर चिल्लाया,
और गार्ड ने मुझे बताया भी नहीं कि प्रेसिडेंट की गाड़ी बाहर खड़ी है। तो मेरे सितारे अच्छे थे, मैंने झांक के देख लिया मर्सिडीज खड़ी थी, तो मैं बाहर आया, दरवाजा खोला आगे का और बैठ गया। मैं बोला मैडम 5 मिनट का टाइम दीजिए। तो उसने मुझे अजीब तरीके से देखा, जैसे डायनासोर के सामने खरगोश आ जाए ना। मतलब अब डायनासोर खरगोश का तो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता, फैक्ट। तो उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा। ठीक है, ओके, शाम को मिलता है। ठीक है, चलो टाइम तो दिया, मगर थैंक यू क्या होता रहा। अब यहाँ मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि वो मैडम थी। अगर कोई सर होते ना तो वही कान के नीचे 2 लगाते और बोले बाहर निकल। तो वो थोड़ा सा फीमेल्स में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है भाई, वही सब ईश्वर की रचना है। शाम को हमें बुलाया गया, तो मुझसे बोली आप वही हैं जो डेट्रॉइट से निकाले गए थे। मैंने यार ये तो मेरी कुंडली लेकर आई है। इसको कैसे मालूम है? तो उसने मालूम कर लिया वो सारा कहानी, भाई कोई मजाक तो है नहीं आप प्रेसिडेंट की गाड़ी रोक दें और उसकी गाड़ी की सीट पे आके बैठ जाए। तो खैर उसने पूरी बात सुनी मेरी। 5 मिनट की जगह उसने करीब 1 आवर 45 मिनट्स, पौने 2 घंटा मेरे साथ पूरी बात सुनने के बाद बोले ठीक है, विल टॉक लेटर। मैं चलो कुछ तो करेगी। अब अगले दिन मालूम पड़ा साहब वो वापस जा रही हैं। तो मैं चलो, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं दिखाई दिया कहीं कुछ भी, चली गई। 1 हफ्ता हो गया, जिंदगी वैसे की वैसी थी। 1 हफ्ते बाद एक फैक्स आता है कॉर्पोरेट ऑफिस से कि मेरा ट्रांसफर जो है वो आपका फुकेट से वापस सैन फ्रांसिस्को किया जाता है। तो पहुंच गए, पता नहीं भाई क्यों ट्रांसफर हुआ। वहां जाके मालूम पड़ा कि हम अपॉइंट किए गए हैं एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ऑपरेशन। अब हमको ये समझ में नहीं आया, नहीं ये बात तो वो इसलिए लग रही है कि अभी बड़ी हो गई, लेकिन उस टाइम हुआ क्या कि मेरे को ये समझ में आया प्रमोशन है डिमोशन है क्या। भाई और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट करेगा क्या? वो काम क्या करना होता है हमें तो यही नहीं पता। जाके गए तो पहली बार एक क्यूबिकल मिला, पहले बेंच पे बैठते थे, क्यूबिकल मिला और उस पर एक छोटा सा एक मॉनिटर था, उसमें शायद लोटस वोटस कुछ ऐसा पहले आया करते थे लोटस, तो वो कुछ था उसके अंदर। तो वो हमें पता ही नहीं, उसमें सी आता था लिखा हुआ, उसके आगे क्या लिखना है। तो हमने उस पर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। मैडम से मिले, उन्होंने हमको बताया कि भाई जितनी भी ऑपरेशंस की रिपोर्ट आती है वो आप देखिए और उन पर आप डिस्कशन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पर यार ये तो एचआर का काम नहीं है, ये तो कुछ ऐसे ही है। मुझे हो सकता है अकाउंट फिनांस में कुछ उस तरीके से लगा दिया। तो मैं 2-3 दिन, अब मेरी क्या ना उनसे अप्रोच हो गई थी, तो मैं 2-3 दिन फिर उनके दरवाजे खोला, घुस गया अंदर। मैंने मैडम ये जो आप मुझे सिखा रहे हो ये है क्या? बोले दीपक एचआर अकाउंट फिनांस ये सब चीजें जो है ना ये ब्रांचेस हैं, यू मस्ट लर्न व्हाट इज द बिजनेस। इन एनी डिपार्टमेंट यू कैन वर्क, राइट? इफ यू डोंट नो व्हाट इज द बिजनेस यू आर यूजलेस। ये पहला ज्ञान था जो मुझे मेरे बॉस ने दिया था कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी के बिजनेस को नहीं समझते हो तो फिर आपकी वहां पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात मुझे समझ में आई कि हाँ यार, अगर बिजनेस समझ लिया तो मैं थोड़ा सा ना मतलब बुद्धिमान हो जाऊंगा। फिर क्या था, वो बिजनेस एनालिस्ट के साथ बैठे, MIS देखनी शुरू करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती थी। तो उनमें से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जहां मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूं। तो उस टाइम ऐसे पावर पॉइंट नहीं बनते थे, आपको पेपर के ऊपर बनाइए और उसे ऐसे करके दिखाइए। तो ऐसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, मैडम को
टाइम लिया, तो बोले ठीक है लंच में आप आ जाओ, मैं खाना खाते रहेंगे, आप अपना दिखाते रहना, इससे ज़्यादा आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो हार्डली 12-13 मिनट्स, नॉट इवन कंप्लीट 15, मैं उनको दिखाया कि हम 1.25 मिलियन डॉलर बचा सकते हैं साल में अगर हम ये करें तो। बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। बोला आप ये घोड़े उड़ाने छोड़िए, आई नो इंडियन पीपल वेरी वेल, आप ये सब छोड़ दीजिए और आप काम सीखिए। बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो सकता है। फिर 1-2 बार ट्राई किया तो वो मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, मैं देख लिया, आप मुझसे ज़्यादा थोड़ी जानते हैं, मैं इस कंपनी में 12 साल से हूँ, आपको तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आप मुझे ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता है। फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग में अपना रेजिग्नेशन लेकर उनके पास गया, मैंने मैडम ऐसा है, या तो आप 2 चीज़ें हैं, आप मुझे एक या तो चांस दीजिए, 3 महीने का टाइम दीजिए, और अगर मैं नहीं कर पाया तो ये मेरा रेजिग्नेशन है, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मुझे था कि शायद ऐसा नहीं करेगी, वो चांस दे देगी, पर ऐसा, पर उसने रेजिग्नेशन पे 3 महीने बाद की डेट डाल के लिख दिया एक्सेप्टेड। अब बोला दोनों पेपर आप अकाउंट फाइनेंस में दे दीजिए और सीएफओ को बोल दीजिए मेरे से मिलने के लिए, उनके साथ ही आ जाइए, फाइनेंस ऑफिसर। तो मैं उनके साथ आ गया, वापस आके हम मिले, मिलने के बाद उनसे बात हुआ, तो बोले ठीक है 3 महीने के लिए इन्होंने ये पूरा एक प्लान दिया है, किस फैक्ट्री में करना चाहेंगे आप? मैं मैडम डेट्रॉइट की फैक्ट्री। हाँ वहाँ मैं 6 महीने काम किया और खुन्नस भी थी, तो ऐसा कैसे भूल सकता हूँ। मैं एक आपकी हेल्प चाहिए, बोले बोलिए। मैंने मेरे को एक ऑफिस ऑर्डर चाहिए कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ठीक है, तो एक ऑफिस ऑर्डर चला गया, उसकी एक कॉपी लेकर हम डेट्रॉइट चले गए। जाके हमने जो वहाँ बीपी ऑपरेशन थे उनकी टेबल पक्का चौड़े होकर मैं ले लो, तो उसने मेरे तुरंत जो मेरा पहले वाला बॉस था उसको बुलाया, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर लेटर पढ़ा, नथिंग, डोंट वरी। मैं वरी तो अब होनी शुरू हो गई, अभी तेरे को मालूम क्या। देन आई स्टार्टेड वर्क फ्लो एनालिसिस, workflow material. I designed complete workflow analysis, waste management, all 8 type of waste, and the process engineering I started. So total काफ़ी मेहनत किया, वेस्ट कंट्रोल किया, मैन पावर राइट साइजिंग किया, और 2 अकाउंटेंट फिनांस के बंदे मेरे पीछे चिपका दिए गए थे कि भाई देखते रहो ये कुछ क्या मतलब। तो खैर उनसे मुझे मतलब नहीं था, तो जो मैं कहता रहा वैसा होता रहा, क्योंकि कोई मना नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑपरेशन का ऑर्डर था, तो कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। 3 महीने ये काम चलता रहा, मतलब आप समझिए कि होता क्या कि एमएनसीज में मंथली P&L बनता है, तो 3 महीने की जब P&L शीट बनी और उसमें जो बॉटम लाइन इफेक्ट था मैन पावर का, ओवर टाइम का, वेस्ट मैनेजमेंट का, तो टोटल उसका इम्पैक्ट अगर एनुअल कैलकुलेट किया गया तो $1.23 मिलियन का आ रहा था। देन ओरियन ने मुझे वापस बुलाया और शाम को उसने मुझे कॉफ़ी ऑफर की। तो ये अब बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन उस टाइम तो कॉफ़ी यार क्या फालतू की बात, चलो कोई बात नहीं, मतलब वो हम ऐसा नहीं लगा कि बहुत इज्जत बख्शी जा रही है। देन आफ्टर 10-15 डेज मेरे को बोला गया आपको बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो मैं सोचा यार बोर्ड मीटिंग से मेरा क्या लेना दे, वहाँ तो सारे डायरेक्टर्स होते हैं। बोले नहीं, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जाना पड़ेगा और जो आपने किया ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं भाग के अपने मैडम के ऑफिस में, मैंने आपने ये क्या कर दिया? बोले नहीं आपने अच्छा काम किया, तो मैं चेयरमैन को बताया, चेयरमैन ने वो चीज़ बोर्ड के सामने रखी है, तो अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। बोले मेरे से बात कर लेते हो, मैंने आपसे बात कर लेता हूँ, अलग बात है।
तो बोले अच्छा आप एक बार चेयरमैन साहब से मिल लो। तो मैं चेयरमैन साहब के रूम में गया, वो अलग बिल्डिंग थी बहुत दूर। वहाँ गया तो खली से भी आप समझो कि मेरे ख्याल से और 2-3 इंच ऊपर ही होगा, उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा, बिल्कुल एकदम साफ ऊपर से पाइप लिए हुए खड़े हैं साहब। तो पहली बार मैंने भगवान को साक्षात देखा। हाँ भाई, ओ मतलब कॉर्निंग का मालिक यार, समझो बात को, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंपनी का मालिक भाई। तो उसने पाइप पीते पीछे 2-4 सवाल पूछे, हम पता नहीं क्या जवाब दिया, मैं नहीं मालूम। खैर मैडम थी साथ में तो उन्होंने संभाल लिया। बाद में उन्होंने बोला आपने जो जो किया वो बताया, ठीक है, आप सेम ऐसे बोर्ड के सामने भी कहते हैं। अगले दिन बोर्ड मीटिंग थी, सुबह से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लास्ट टाइम तक चलता रहा। खैर जब मैं बोर्ड मीटिंग पहुंचा तो मेरा डर गायब हो चुका था और मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी तक तो सब अच्छा ही हुआ तो आगे भी अच्छा ही होगा। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। देन चेयरमैन आस्क्ड मी कैन यू इम्प्लीमेंट इट एवरीवेयर इन ऑल प्लांट। मैंने इफ यू विश देन ओनली, अगर आप चाहेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं। बोले मेरे चाहने से क्या होता? मैंने आपके बिना चाहते हैं पत्ता नहीं हिलता साहब। बाकी तो बात छोड़ दीजिए, क्या सपोर्ट चाहिए? मैंने काम में इंटरफेयर नहीं चाहिए। ठीक है आपको ऑफिस ऑर्डर मिल जाएगा, एंड किसी का भी नहीं चाहिए, मैं किसी का भी नहीं चाहिए। तो मेरे बॉस को जो ओरियन थी उस टाइम, तो बोला ओरियन आप भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चेयरमैन को कौन क्या बोलेगा भाई, किसकी वो है। तो हमारे पास एक ऑफिस ऑर्डर आ गया, हमने उसका पूरा एक SOP बनाया। उसके बाद में फिर हमने दुनिया घूमनी शुरू करी। 86 nations I visited in Corning when I was in Corning. ये प्रोजेक्ट 2.5 year चला। टोटल सेविंग वाज अराउंड पर एनम अगर कैलकुलेट की वर्ल्ड वाइड तो ये करीब $2.6 बिलियन की थी। उसके बाद में हम जब सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ईयर था 1993, बुलाया गया हमको वापस ऑफिस चेयरमैन साहब के रूम में, एंड he called that and he asked कि भाई, और मेरा जो डेट्रॉइट का बॉस था वो भी आया, मैडम भी बैठी हुई थी, और जो मेरा फुकेट में बॉस था वो भी बैठा हुआ था, एंड some other HR heads there. So he introduced me basically when I was coming. He said, welcome Mr. Deepak Sharma, our new head of HR. The head of HR function, he says, globally. तो वो दिन मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं रिपोर्ट कर रहा था वो लोग बहुत जल्दी मुझे रिपोर्ट कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ी चीज है वो है नेवर गिव अप। जीवन में समस्याएं आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं, आपको आके चैलेंज करती हैं, बट अगर आपने गिव अप कर दिया तो सब खत्म। देखिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी किसी की भी, ना कोई एडवाइस देने वाला था, ना कोई सपोर्ट थी, और मेरी करियर की आप समझिए पहला जॉब था, और एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी में उस कंपनी में गया। उसके बाद में उसी कंपनी में फंक्शन HR हेड बना। 6 साल उस कंपनी में मैंने काम किया टोटल। आफ्टर दैट आई ज्वाइन पेप्सिको होल्डिंग एज हेड ऑफ HR फॉर एशिया पैसिफिक। तो कंपनियां बदलती गई। देन इन इंडिया LNG भिलवाड़ा ग्रुप, सूर्या कॉर्प, बिरलास, अगेन बैक टू MGI जर्मनी, मेट्रो गोल्डा इंटरनेशनल, वॉक्सवैगन ग्रुप की मदर कंपनी है, जैसे टाटा सन्स लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा एम्पायर, so MGI is the main umbrella company basically. तो इस तरीके से प्रोग्रेस एंड ग्रोथ का शुरू हुआ। यहाँ मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, वो हमें एंट्री देते हैं, वो आपके जीवन में आपको एंट्री देंगे।
ठीक है, उसके बाद आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आपने कैसे प्रोग्रेस करनी है, क्या आपने बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू गॉट माई पॉइंट? सो नेवर गिव अप. नाउ वी स्टार्ट, वी वेरी 4-5 slides only, just we can. So can you tell me what is success? अब आप लोग बोलिए, व्हाट इज सक्सेस? चलिए, और व्हेन गोल्स अचीव्ड, मेंटल सेटिस्फैक्शन. थोड़ा जोर से बोलो ना, सब लोग सुन लेंगे. या डायरेक्टर साहब की वजह से नहीं बोल पा रहे? सोचो, बैठे नहीं है ना, उसमें क्या है? माइंड सेट है, दिमाग से निकाल दो, बैठे नहीं है. आप फोकस मेरे पर रखो, बस बात खत्म. कुछ नहीं कहेंगे आपको बाद में. हाँ बोलिए. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये सक्सेस है. बहुत अच्छे. और कोई? इससे भी एक आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, वो सक्सेस है. ठीक है, प्राइस टैग वाली बात तो पीछे रह गई ना. चलो, सक्सेस क्या है कि माइंड सेट है. अच्छा, सक्सेस का एक भाई और है, फेलियर. वो क्या है? अब इनके रिलेशन मैं आपको बताऊंगा 2 लाइन में. फेलियर क्या है? थोड़ा जोर से बोलो. जो चाहते हैं वो नहीं मिला. अच्छा, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ. हाँ, और लर्न तो सक्सेस में भी होता है, फेलियर में भी होता है. कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है. हाँ, काफी हद तक ठीक है. और वो तो एंड ही हो गया फिर आपको. और अच्छा, इनका एक, चलो दूसरे तरीके से समझते हैं बात को, एक रिलेशन घुमाते हैं इनका. अब आप एक प्रश्न का जवाब देना. अगर मैं फेल होने में फेल हो जाऊं तो क्या होगा? ठीक है, तो फेल होने में अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ? और अगर आप सक्सेस पाने में फेल हो गए तो? अब शब्दों को ऐसे समझते रहिए आप. ठीक है, अगर फेलियर होने में मैं फेल हो गया तो सक्सेस हो गई, और फेलियर होने में अगर मैं सक्सेस हो गया, अगर आपको देखिए, सक्सेस की इंपॉर्टेंस समझिए. आपको फेल होने में भी सक्सेस होना पड़ेगा. अगर आप फेल होना चाहते हैं तो आपको सक्सेस होना पड़ेगा या नहीं? तो अगर आप फेल होने में भी फेल हो गए तो आप सक्सेसफुल हो गए ना. तो आपको सक्सेस नहीं आया समझ में? चलिए, यार इनका रिलेशन है आपस में, ध्यान रखिएगा, बहुत नाजुक रिलेशन है. चलिए बताइए, कर्मा क्या है? कर्म. और देखो, अंग्रेजी में ना क्या, गंगा जो है वो कुछ और बन गया, गैंजेस हो गया. पता नहीं चलता गंजे की बात कर रहे हैं क्या या गंगा की बात कर रहे हैं. कर्म, कर्मा हो गया. चलो खैर है. हाँ, वो ठीक है. देखिए, जो कोर नॉलेज है ना, वो ट्रांसलेट नहीं होती. अगर मैं आपसे वेद की किसी ऋचा को, वेद की किसी श्लोक को ट्रांसलेट करने को, कोई दुनिया में नहीं है जो ट्रांसलेट कर सके उसकी आत्मा के साथ. वो नहीं सकती.
तो कर्मा क्या है सर? कर्म, कर्म क्या चीज है? देखिए कर्म जो है वो आपके फेलियर और सक्सेस से जुड़ा हुआ है। तो हम सक्सेसफुल कब होते हैं? जब हम फेल होने में फेल हो जाते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। अब एक शब्द, एक चीज और आई है, डेस्टिनी। बिलीव करते हो? मैं भी करता हूं, जोर से बोलो, करते हो या नहीं करते हो? हाँ। अब ये क्या चीज है? भगवान पे भी आएंगे, पहले यहाँ इससे निपट लें। डेस्टिनी क्या है? इसके भरोसे बैठ सकते हो? क्यों? ये तो मिलना ही है? देखिए आपकी डेस्टिनी यही है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आप बहुत ध्यान से, मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं आपको, वो समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे यहां तक कैसे पहुंचा जाता है। विचारों से शब्द बनते हैं। ठीक, विचारों से शब्द बनते हैं, शब्द से कर्म बनता है। ठीक है। और कर्म से उसके फल की रचना होती है, फल बनता है, और जो उसका फल है उससे आपका भाग्य बनता है। जब भी आप कोई काम करते हैं आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसका मतलब वहां पर दो ही ऑप्शन थे, या तो करना है या नहीं करना है। आप नहीं करते तब भी आप कर्म करते हैं, आप करते हैं फिर भी आप कर्म करते हैं। तो ना करने से तो वो कर्म जीरो नहीं होता है। या तो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तब भी आप एक कर्म कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। ठीक है। और कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो है। तो जो ऑप्शन आपके पास है उससे जो रिजल्ट पैदा हुआ है वो आपकी डेस्टिनी को लीड करेगा, वही आपको लेकर आगे तक जाएगा। तो यहां पे आपको जो चीज समझनी है कि अगर आप अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं तो क्या चीज बदलिए? विचारों को बदलिए। चेंज योर थॉट्स। कर्म के बदलने से भाग्य नहीं बदलता है। कुछ भी अगर आपको अपने जीवन में बदलना है तो आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे, थॉट्स बदलने पड़ेंगे। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी समझते हैं क्या है इनका आपस में? जैसे लोग कहते हैं भाई पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, है? अच्छा, निगेटिव कौन सोचेगा फिर? आप सामने से तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में जितना आप बोलेंगे निगेटिव नहीं सोचना है, उतना ही आपको निगेटिव आएगा। देखिए इस चीज को वाइप कर दीजिए, कुछ भी निगेटिव नहीं है। निगेटिव क्या है कि आप वर्स्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, बस। इस शब्द को अपने दिमाग से डिलीट मार दीजिए कि कोई चीज निगेटिव भी होती है। आप सिर्फ वर्स्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। पॉजिटिव भी कुछ नहीं है, आप खाली क्या है कि जो बेस्ट है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, जो ऑप्टिमम हो सकता है, एक्सट्रीम में जाके। दोनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। जितना भी मैथमेटिक है, लाइफ अपने आप में एक मैथमेटिक है। जितना भी मैथमेटिक है उसमें केवल चार ही चीजें हैं, ओनली 4 कंपोनेंट्स। क्या क्या है? या तो आप प्लस करेंगे, या आप माइनस करेंगे, या आप डिवाइड करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे। सारी कैलकुलेशन इन 4 कंपोनेंट्स पे घूमती है। ऐसी हमारी जिंदगी की पूरी जो सक्सेस ग्रोथ है वो केवल एक चीज पे घूमती है। पूरा जीवन आदमी एक ही चीज के पीछे भागता है। क्या है वो? ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैसा ही बोला जाएगा, लेकिन पैसा नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। और थोड़ा दिमाग लगाओ, पहुंच रहे हो लेकिन थोड़ा इधर उधर जा रहे हो। हैप्पीनेस कह लो,
अब पीस पे मुझे याद आया, हमारे जो सेजेस हुए हैं ना, बड़े चतुर सुजान हुए हैं, मतलब बहुत क्लेवर हुए हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कहते जैसा आपने कह दी। पीस पीस तीन तरह की होती है। आप मंदिर में जाके बैठिए, एक शांति है। अब देखिए, कुछ चीजों को आप डिफाइन नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। मंदिर में जाते हैं, पीस होती है, फील की है कभी? आप घर के एकांत कोने में बैठे हो चुपचाप, वहां पे आपने पीस फील की है? या नेचर में कहीं पहाड़ जंगल में कहीं भी चुपचाप अकेले बैठे हो, महसूस की है? क्या वो मंदिर वाली पीस है? कभी शमशान घाट में चुपचाप जाके बैठे हो, वहां भी पीस है? देखो, तीनों पीस अलग है, और तीनों आपको अलग फीलिंग्स का अलग ट्रेवल कराती हैं। ठीक है? तो पीस कौन सी चाहिए? इसलिए जो हमारे सेजेस हुए, उन्होंने जब वेदों की ऋचाएं करी, लिखे, तो उन्होंने बड़े कायदे से लिखा। एक बहुत, आपके घर में पंडित जी आते होंगे, पूजा करते होंगे, तो एक मंत्र पढ़ते होंगे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है। इसके लास्ट में लाइन आती है, शांति शांति सुशांति भवन्तु। वहां वो कहते हैं सुशांति भवन्तु, जो भी शांति हो, शुभ हो। तो जब भी कम्युनिकेट करें, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि किसी भी चीज के तीन मीनिंग होते हैं: मीनिंग ऑफ द लाइंस, मीनिंग बिटवीन द लाइंस, मीनिंग बिहाइंड द लाइंस। अगर आप तीनों में क्लियर हैं, तभी आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नहीं तो ईश्वर बहुत चालाक है, वो आपकी बात का कोई भी मीनिंग निकाल के वैसी तथास्तु कर देगा जैसा उसको चाहिए। हिरण्यकश्यप की स्टोरी पढ़ी है? वो बहुत चालाक था। वो पहुंचा ट्रिनिटी में से एक के पास, ब्रह्मा जी के। अब राक्षसी बेवकूफ नहीं होते थे, वो कोई नारायण की तपस्या नहीं करता था, उन्हें पता कुछ देगा है नहीं, और चार कहानी सुनाकर टरका देगा। तो या तो शिव के पास जाते थे या ब्रह्मा के पास जाते थे। किसी किसी राक्षस ने भगवान विष्णु की तपस्या करी, सुना किसी ने? वो गया, उसने कहा जी अमर कर दो। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ा, क्या कहा, ऐसा कैसा कर दो भाई, ये तो हम कर ही नहीं सकते। ये भी एक इतिहास है, माइथोलॉजी में देख लेना कि ट्रिनिटी में से, मतलब त्रिदेव में से, किसी ने भी आज तक किसी को भी अमरत्व का वरदान नहीं दिया, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से बाहर, दे कांट। जब भी तो नहीं दिया ना, नहीं तो भक्त तो एक से एक हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने अपना कैलकुलेशन लगाई, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। जितना हिसाब किताब लगा सकता था उतना उसने लगाया। ऐसा करके सभी राक्षसों ने हिसाब लगाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो, उसे बेचारे को फंसा दिया। उसे जो दहलीज होती है उस पर लेकर बैठ गया नारायण, बोले देख तू चतुर है बेटे, हम भी तेरे पिताजी हैं। लेकिन जो सेजेस थे, एक्चुअली जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, वो कम्युनिकेशन के मामले में बहुत चतुर थे। ठीक है? तो इसलिए जब भी आप कम्युनिकेट करें तो कंफर्म कर लें कि भाई जो मुझे चाहिए वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि जितना आप शब्दों से खेलेंगे, वो उतने ही शब्द खराब हो जाएंगे। तो ये आपका डेस्टिनी जो है वो आते आते बिगड़ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो तीन कंपोनेंट हैं आपकी ग्रोथ के। ग्रोथ समझते हैं? किसी भी चीज का बढ़ना। ठीक है? तो लाइफ में अगर आपको ग्रोथ करनी है, वो प्रोफेशनल पर्सनल सब मिला लीजिए, तो आपको तीन चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए बताओगे? यार, आप बिल्डिंग में ना, मतलब टॉप फ्लोर से मत घूमो, फाउंडेशन में आ जाओ। हुँ? पहली चीज चाहिए आपको एक बॉडी। ठीक है?
इसके बिना कोई ग्रोथ संभव है? चलो, दूसरा चाहिए आपको एक माइंड, ठीक है, और तीसरा चाहिए आपको एक सोल। मैं आप अभी भी आप समझ जाओ, फाउंडेशन पे ही बात करना। ठीक है, तो बॉडी क्या, बॉडी की अगर अब इसमें आप ये समझिए, आपको बॉडी की ग्रोथ करनी है तो उसे फ्यूल देना पड़ेगा, ठीक, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी? जब आप उसे फूड दोगे। बॉडी का फूड क्या है? जो भी आप खाना खाते हो वो आपका बॉडी का फ्यूल है, उसी से काम करेगी। अगर आप इसको राइट डायरेक्शन नहीं दोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे, ठीक है। जब तक मैंने इसको राइट डायरेक्शन दिया मैं बहुत फिट था। 1982, मतलब मैं उस समय हाई स्कूल में रहूँगा 10th स्टैंडर्ड में, और जब से लेके आप समझ लीजिए 2014 तक, 2014 तक, उसके बाद से फिर जिम गया तो 36 से 46 हो गया। फूड और बॉडी, मतलब जब तक आप देखिए, जब तक आप राइट डायरेक्शन देते रहेंगे ग्रोथ राइट डायरेक्शन में होगी। अगर आपने बॉडी को फूड दिया, अच्छा खाना खाया, और आपने उसको राइट डायरेक्शन नहीं दिया तो वो किधर से भी फैलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, आपका जो ब्रेन है उसका फूड क्या है? नॉलेज। अगर आप इसको राइट डायरेक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा? ये पॉल्यूट हो जाएगा। अब यहां एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अगर मैं अपना एक हाथ ऐसे रखता हूं और उसको सेलो टेप से बांध देता हूं, 1 साल बाद क्या मैं इसको अगर यूज करना चाहूं तो यूज कर सकता हूं? क्यों? देखिए, माइंड भी आपके बॉडी का एक ऑर्गन है। आप अगर इसको यूज नहीं करेंगे, ट्रस्ट में ये काम करना बंद कर देगा। और इस ये आप खुद सोच के देखिए कि आप कब से इसका यूज करना आपने बंद कर दिया, कब से आपने इसका यूज करना बंद कर दिया, कब से आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, आप एक शोल्डर ढूंढते हैं, कोई ऐसा ढूंढते हैं जो आपको सिंपैथी दे सके, कोई ऐसा ढूंढते हैं जो आपको एडवाइस दे सके। लेकिन आप अपने आप फेल हैं उस चीज का आंसर ढूंढने में। आपका माइंड स्टन हो जाता है। अगर मैं आपको कोई आपको 4 पेज का एक लेटर दे दे, 4 पेज का कुछ आर्टिकल दे दे, तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप क्या है यार, इतना लंबा कौन पढ़ेगा? ये चीज आपकी हैबिट में आ चुकी है। तो आप टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ेंगे? आप बनाएंगे नोट्स, शॉर्ट्स, क्योंकि आप ब्रेन के गुलाम हो चुके हैं। वो आपसे अपने कंफर्ट के लिए वो सब करवा रहा है जो उसे चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे एक लाइन में आपको दोबारा बताता हूं, समझ लीजिएगा, हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। द 5 senses आर बेटर देन बॉडी, बिकॉज 5 senses कैन कंट्रोल द बॉडी। राइट और रॉन्ग? एंड brain is better than 5 senses, right? Because brain can control all 5 senses, and the soul is better than brain because soul can control the brain. And who is better than soul? Soul is the actual owner of this body.
The supreme soul is the better than your soul. So if you are not giving right food to your brain, trust me, it will dead. No use. फिर एक बार डेड हुआ तो फिर वो काम में नहीं आता. अब आप खुद चेक कर लो, आपने कब से यूज करना बंद कर दिया. आप ही ने बोला 1 साल अगर हाथ ऐसा रखोगे तो नहीं चलेगा. अब ब्रेन का सोच लो, कब से यूज नहीं कर रहा. द फूड फॉर सोल इज द डिविनिटी. ठीक है. अब सोल को अगर आपने राइट डायरेक्शन दे दिया तो फिर तो आप कुछ बन ही जाओगे जीवन में, क्योंकि केवल एक यही चीज ऐसी है जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है. आप कुछ भी करते हो, आपको एक साउंड अंदर से जरूर आती है कि गलत क्या है और सही क्या है. आप इग्नोर कर दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपको जरूर बताती है अगर आप कुछ भी ट्रैक से ऑफ ट्रैक होते हो. ट्राई टू लिसन इट. अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइफ में. पहला है एटीट्यूड. ये बड़ा विचित्र शब्द है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है. 2-3 क्वेश्चन, 2 स्लाइड और रह गई है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा. जंगल में सबसे ज्यादा तेज कौन सा जानवर भागता है? चीता. ठीक. जंगल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर कौन सा है? अब देखो, यहां पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ है. कम्युनिकेशन में आप हमेशा 2 शब्द हैं लेकिन एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे है नहीं. एक है लिसनिंग, एक है हियरिंग. हियरिंग जो होता है वो बेसिकली क्या है कि रिप्लाई देने के लिए यूज होता है, और लिसनिंग जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. तो कभी भी जिंदगी में आप कुछ भी सुनो, ठीक है, लिसनिंग करो. खाली रिप्लाई देना इसलिए मत सुनो. मैंने कहा बुद्धिमान, मैंने चालाक नहीं कहा. मुझे मालूम था आप लोग लोमड़ी बोलोगे. सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर कौन है जंगल में? एलिफेंट. अब ठीक है. और सबसे ज्यादा चालाक? हाँ, अब लोमड़ी बोली, अब कोई बात नहीं. ठीक है. अच्छा, और सबसे ज्यादा दूर तक देखने वाला? ईगल. अब आप एक बात आइए, शेर जो है वो ना तो सबसे ज्यादा तेज भाग सकता है, ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हाथी से ज्यादा ताकत तो होती नहीं. ना सबसे ज्यादा वाइज है, ना सबसे ज्यादा क्लेवर है, ना सबसे ज्यादा दूर तक दिख सकता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा है. विदाउट इलेक्शन. जंगल में इलेक्शन नहीं होते, ना कोई इस बात की चर्चा करता है. हमेशा के लिए है वही राजा है. तो क्यों है ऐसा? वो एटीट्यूड. तो लॉयन का एटीट्यूड क्या है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब दोबारा ध्यान से सुन लेना. नहीं, शेर को स्वप्न में भी स्वप्न नहीं आता. मतलब हाँ, सपने के अंदर भी उसको ये सपना नहीं आता कि वो कमजोर है, वो अकेला है और वो ये नहीं कर सकता. फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं. शेर को स्वप्न के अंदर भी ये स्वप्न नहीं आता. द ड्रीम इन द ड्रीम. ठीक है. ड्रीम इन द ड्रीम मीन्स इन अनकॉन्शियस माइंड. ये विचार ही नहीं होता उसको कि वो कमजोर है, वो अकेला है और वो ये नहीं कर सकता. चाहे उसके सामने हाथी खड़ा हो, चाहे उसके सामने टाइगर हो, चाहे उसके सामने आप फॉक्स हो, जो मर्जी. इफ इट डिसाइड टू किल,
you can kill, and no one can defeat. उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो निकल भी लेता, अगर बहुत सारे जंगली भैंसे खड़े हैं तो वहां से निकल भी लेगा साइड से, वो उस चीज की स्टार्टिंग ही नहीं करेगा। लेकिन उसका अपना एटीट्यूड, वो इन चीजों से दूर है। तो इफ if you can kill the fear, then you are limitless. If you are fearless, then you are limitless. तो आप अपना एटीट्यूड डिसाइड कीजिए, और एटीट्यूड जब भी चेंज होता है थॉट से होता है। एनी क्वेश्चन? दूसरा है एक्सपर्टाइज। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी बेस्ट एक्सपर्टाइज अपने काम के अंदर होनी चाहिए। वॉट एवर यू डू, यू मस्ट बी बेस्ट in your capacity, not in comparison with any other person. Whatever your capacity and capability is, you must be best in that. ठीक है? Then communication. Communication में मैंने आपको बताया कि जब भी आप सुने, लिसनिंग के लिए सुने, अंडरस्टैंडिंग के लिए सुने, और हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उसका सीधा साधा मतलब क्या है, किस लिए कह रहा है और क्यों कह रहा है। अगर तीनों मीनिंग क्लियर है तो आपका कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा। द मीनिंग ऑफ द लाइंस, मीनिंग बिटवीन द लाइंस एंड मीनिंग बिहाइंड द लाइंस, अगर ये तीनों चीज आपकी क्लियर है तो आपका कम्युनिकेशन कभी फेल नहीं हो सकता। और नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन कीजिए। और द फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करें? टू डिसाइड सम प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, फॉर दैट व्हाट टूल यू आर यूजिंग? गोल सेटिंग करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं? Here we go. टाइम मैनेजमेंट। ये टूल यूज करके देखिए एक बार, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का। आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, एक एक्सेल शीट बना लीजिए, 4 बॉक्स बना लीजिए और मर्ज कर लीजिए उनको, ठीक है? और उसमें आप ये 4 कलर फिल करके लिख लीजिए। अब इसमें जो चारों कलर हैं आपके, इसमें आप लिखिए कि क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट। सेम इसी कैटेगरी में लिखिए, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप इसको फिल करना शुरू कीजिए, ईमानदारी से लिखिए। उसमें पहले काम से लिखिए कि सुबह बिस्तर से उठना जो है वो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है? और लास्ट सोना। तो वहां तक के जितने भी आपकी एक्टिविटी है, आपकी डे एक्टिविटी है, वो आप इसमें नोट डाउन करिए। 1 हफ्ते तक करिए। जो कॉमन एक्टिविटी है वो तो आप डेली वही करेंगे, तो उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आप नया करते हैं तो उसको करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि ये चारों में से कहाँ बैठेगा। उस खाने में काम कर लीजिए, लेकिन उस खाने में लिख दीजिए उसको। तो ये जो किया ना, ये आज इस कैटेगरी में आता है। तो 1 वीक का चार्ट बना लीजिए। तो बहुत इसमें लंबा चौड़ा आपका मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना बोर होना पड़ेगा। जब आप बना लेंगे तो आप 1 वीक का संडे आपका खाली होता है ऑलमोस्ट, आप उसमें बैठ के उसको एक बार पढ़ लीजिए कि इस पूरे हफ्ते में जो मैंने काम किए हैं वो ये 4 कैटेगरी हैं, इनके अंदर कौन सा बॉक्स जो है मेरा वो ओवरलोड हो रहा है। फिर इनको रीशफल कीजिए कि भाई अगले हफ्ते से मैं इस काम को इस कैटेगरी से निकाल के इसमें रखूंगा। उसको नई कैटेगरी, मतलब उसको प्लेस कर दीजिए, नई कैटेगरी कर दीजिए, ठीक है?
तो आप उस नए हफ्ते के लिए उसको आप नए तरीके से बना लेंगे, फिर उसको फॉलो करके देखिए। आज एक चीज आपको अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है नेक्स्ट वीक आप सोचे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, सो आई कैन शिफ्ट दिस वर्क इन दिस एरिया, आई विल डू ऑन द सेम प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी मैंने बनाई हुई है बॉक्स के हिसाब से, वो मैं पहले करूंगा। जस्ट डू इट फॉर 4 वीक्स। आपके साथ पास फिर 4 शीट होंगी, तो आप पूरे 1 महीने का ट्रायल देख सकते हैं। आप में से कितने लोग लिंक्डइन पे हैं? चलिए, आप इस पूरी शीट को बनाइए। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, बना के जो लोग बना के उसको मुझको आप मेल कर सकते हैं, बट बनाइए एक्सेल में, कैपिटल में लिखिएगा और चारों बॉक्स जो है वो मर्ज करके लिख कर दिएगा, तो मुझे एक्सेस में आसानी रहेगी। तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपकी प्रायोरिटीज में आप किस ट्रैक में जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीजों पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, दैट आई कैन हेल्प यू। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की बात थी, बाकी तो सब आपसी बातचीत थी। वो ये अगर आप करेंगे तो आपको काफी हेल्प, प्रायोरिटी मिल जाएगी। इट्स अ वेरी गुड टूल। मैं इसको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और लगभग डेली करता हूँ, और शाम तक बहुत सारी चीजें इधर से उधर पहुंचा देता हूँ, ठीक है। सो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होता? कोई ऐसी स्टेट आती है जब कुछ भी आपके दिमाग में नहीं होता, और जैसे और उस समय आप बड़े शांत होते हैं, और जैसे ही आप उस शांत के का आनंद लेना चाहते हैं, अचानक बीच में कुछ कूद पड़ता है, होता है ना सर? हाँ, तो जब आप इस ट्रांस की पोजीशन में होते हैं, इसका मतलब है कि आप कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन किया था मैंने आपसे कि पूरे जीवन आदमी किसके पीछे भागता है, वो शब्द है प्लेजर, आनंद। हम सब प्लेजर के पीछे भागते हैं पूरी लाइफ, ये अकेला एक शब्द। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूं कि हमें एक स्किल चाहिए पूरे जीवन में कामयाब होने के लिए, ओनली 1 स्किल, और उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। वो कौन सी स्किल है? एक स्किल बताइए, मास्टर स्किल। देखिए, हैबिट्स और स्किल में फर्क है। स्किल्स है। अब आप ये सोचिए कि आप किस चीज को स्किल की कैटेगरी में रखना चाहते हो। भाई बिल्कुल, कोई गूंगा अंधा बहरा होगा, वो भी, उसको भी जो स्किल मैं बता रहा हूँ ना वो होनी चाहिए। लर्निंग नहीं, नहीं, नहीं जी, नहीं। सांस लेना स्किल है। हाँ, स्किल तो है, अगर आप अच्छे से प्राणायाम करना जानते हैं तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है, बट उससे भी एक और प्राइमरी स्किल है। देखिए, ये स्किल है विक्रय की, बेचने की, सेलिंग, बेचना। अब आप अपने पेरेंट्स को अगर ये अपने इमोशन नहीं बेच पाए कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप अपने टीचर को अगर ये नहीं बेच पाए कि उसने जितना आपको पढ़ाया और आप समझ गए, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, हस्बैंड अगर वाइफ को ये एक्सेप्ट, मतलब ये नहीं बेच पाया अपने इमोशन की, वो उसे बहुत प्यार करता है, उसके अलावा किसी को प्यार नहीं करता, ना वो किसी को जानता, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बेचारे का क्या होगा, है?
तो ये जो बेचने की आर्ट है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो वहां पे? गुड़ खाना तो जा नहीं रहे, तो आप बेचने जा रहे हो ना। आप अगर अपने आप को वहां ठीक से नहीं बेच पाए तो कंपनी में जो भी रिक्रूटमेंट का आया वो आपको क्यों सेलेक्ट करेगा? तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए इस स्किल में। अब आपको मैं बताता हूं लास्ट पॉइंट, इसके बाद देखते हैं आप लोग कितना। कोई भी चीज अगर बिकती है तो क्यों बिकती है? वो कौन से दो इमोशन हैं जिनकी वजह से वो बिकती है? दुनिया में कोई भी चीज अगर बिकती है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कुछ कुछ भी हो, ठीक है, तो वो सिर्फ दो इमोशंस की वजह से बिकती है। नीड इमोशन है, यार अपना भी लाओ ना कुछ। हम्म हम्म काफी हद तक आ रहे हो। हाँ हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट हाईवे से अभी स्टेट हाईवे पे आ गए, चलो नेशनल हाईवे पे आना। देखिए कोई भी चीज अगर बिकती है, बोलो, सेटिस्फैक्शन इमोशन है। चलो मैं, सही है, संतुष्टि के लिए भी हो सकता है, खाली तृप्ति पता नहीं बैठी है नहीं बैठी है सबसे। चलो खैर, कोई भी चीज अगर बिकती है तो उसके दो रीजन है। एक है आपका ग्रीड और एक फियर। ये जो दो इमोशन है, ये लाइफ में 90% से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ग्रीड एंड फियर। अब इनके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, कितने परसेंट ग्रीड कितने परसेंट फियर। ग्रीड के फिर आप और नीचे उसको आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, उसमें संतुष्टि है, तृप्ति है, हाँ, जो भी आप जाए वो सब उसमें आता है। और जो सबसे पहला है वो है प्लेजर। प्लेजर के नीचे फिर ये दो आते हैं। प्लेजर तो मास्टर इमोशन है, वो तो फाउंडेशन है। फिर वो आगे जाके दो विंग्स में आ जाता है, एक आपका ग्रीड है, एक आपका फियर है। अब एग्जांपल ले लीजिए आप, ये ऑल आउट या गुड नाइट का जो ऐड आता है, आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को ना बहुत ध्यान से सुने। इस चीज को पकड़ने का तरीका बता रहा हूं आपको। आप हर एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से सुने, क्यों, क्या ऑफर कर रहे हैं, उसका बेस क्या है। ऑडियंस का टारगेट मत देखिए, आप ये एडवर्टाइजमेंट को सुनिए कि उसका बेस क्या है, वो ऑफर क्या कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है। कम्युनिकेशन के तीनों पार्ट को आप चेक करिए, आपको मिल जाएगा यही दो चीजें। गुड नाइट का जैसे आप देखते हैं, माँ उसके एक छोटा बच्चा है, थोड़ा उससे बड़ा, उसको बोलती है क्या तू इसका बॉडीगार्ड बनेगा। वो बच्चा बेचारा देखता है तो भाई वो नहीं, इसकी टीम में गुड नाइट है। मतलब ये इमोशंस को देखिए किस लेवल से कैसे घुमा के क्या दिया जा रहा है। बट है तो फियर कि अगर नहीं करेगा तो डेंगू हो जाएगा। अब वो फियर का जो इंजेक्ट है वो माँ के अंदर भी हो रहा है और बेटे के अंदर भी हो रहा है। तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए कि कितना आपको इन दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज करके कब कैसे इंजेक्ट करना है अपने बेनिफिट के लिए, तो आप कर सकते हैं। ये चीज आप पूरे जीवन में कहीं भी यूज कीजिए, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, आ गए आप देखिए कैसे कैसे आप कर सकते हैं। चलिए, एंड थैंक्स अ टन फॉर गेटिंग बोर एंड टॉलरेटिंग मी। ओके, थैंक यू।
Thank you so much, sir. It was indeed a fun, interactive, and empowering session which helped all of us to realize our true potential within and showed us a direction to deal with the issues in the best possible way. I hope that each and every one of us present here will apply your teachings in several walks of life, as we now know the holistic secret of life skills, which will help us to achieve exemplary growth and success in our lives. Thank you so much, sir, for sparing your precious time for all of us. Thank you, everyone.